जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस दुनिया से अपना भी हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। تمو شرم بزت کھمت کیا گھنا تم موجود لیڈرن ونان لیڈر ما ونیو پنس پانس لیڈر کی آج لیڈر وچھت لکن باسن تصرفدار آئی یس اخ کت ونان اخ کت پتہ بیاکھ کت کران باشا ڈیریویشن کیجول لیبر یا سو اپاہی یمس ڈسیبلڈ ونان ونہا مگر کمس ون کل کھن بوزن خاطر کی بڑ کت بجہ کت ونان کی ونان حاکمن حساب دیو یہ ونو تچھوا کرن کنہ وات دہا میون مزور میون کسان مین بینی مین کوڑ میون نوجوان بے روزگار نوجوان یمس ڈگری چھ مگر دکانس پہ کام کرنک موقع چھس نہ ڈونک موقع چھس نہ کیجول لیبر ڈیلی ویجر دفترن سجاون دفترن بناون فائل سارن ڈیلی ویجر میانے بچہ چون کاغذ نا یمن فائلن مز ونہ برونٹ پکن کی پوری دنیا میں آج یہ دن منایا جا رہا ہے اور ان شہیدوں کو سلام پیش کرنے کے لیے جنہوں نے شکاگو میں آواز دی، جنہوں نے وہاں قربانیاں دی، کئی لوگوں پر گولیاں چلی، کئی لوگ جن کو پھانسی پر چڑھایا گیا محض اس وجہ سے کہ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں کام کرنے کا دن مقرر ہو، اور ان کی لڑائی کو دیکھتے ہوئے، ان کے ایکٹا کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے ایڈمنسٹریشن کو جھکنا پڑا۔ یہ الگ سوال ہے، کئی لوگ مارے بھی گئے، کئی لوگوں کو پھانسی بھی دی گئی، مزدور نیتاؤں کو، لیکن وہ رک نہ سکے، آواز بلند کرتے رہے، اور امریکن ایڈمنسٹریشن تب جھکنا پڑا ان کو۔ اور آج جو پوری دنیا میں 8 گھنٹے کا دن مزدوری کے لیے مقرر ہوا ہے، وہ شکاگو کے ان مزدوروں کی جدوجہد اور قربانی کا ہی نتیجہ ہے۔ اور اسی وجہ سے آج یہ دن پوری دنیا میں مشرق مغرب جنوب شمال چاہے کوئی بھی خطہ ہے، آج لیبر ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اور یہاں ہماری روایت کشمیر کی تاریخ کو ہم بھولیں گے نہیں۔ یہاں زال نگر سری نگر میں ایک جگہ ہے شکاگو سے پہلے، اور وہاں انہوں نے اس وقت کہا تھا، شال باپ تھے، ویورز تھے، انہوں نے اس وقت کہا کہ ہمیں ٹائم مقرر کیا جائے، اور یہ جو ظلم و جبر ہے ڈوگرا حکمرانوں کی طرف سے وہ بند ہونا چاہیے۔ اس وقت راشن تک بند تھی، اس وقت بھوک کا شکار ہونا پڑتا تھا، اور اس میں کئی لوگوں کو جانیں بھی چلی گئی اور کئی لوگوں کو جیلوں میں بند بھی رکھا گیا۔ یہ تاریخ ہے ہماری سنہری تاریخ۔ زال نگر کے مزدوروں نے بھی اس عالمی جدوجہد میں اپنا حصہ ادا کیا، اور پھر 1924 جو بھی 1900 کچھ سال گزرنے کے بعد یہاں سلک فیکٹری کے مزدوروں نے ہڑتال کی، تاریخی کئی دن کئی ہفتے وہ ہڑتال رہی، اور اجرت بڑھانے کی مانگ تھی، بہتر زندگی کے معاملات
उनको तय करने का सवाल था। उनके हुसूल की खातिर उन्होंने आवाज दी, जदोजहद की, लाठियां बरसी, जेल गए वो लोग, लेकिन झुके नहीं, सरकार को झुकना पड़ा। ये तारीख है हमारी, वो तारीख है शिकागो की। और इसी वजह से कश्मीर हो या शिकागो हो, मजदूर की जो आवाज रही है, वर्कर की आवाज, चाहे वो वर्कर कारखाने में काम करने वाला हो, खेत मजदूर हो, या इसके अलावा किसी कॉरपोरेशन में, किसी इदारे में छोटा मुलाजिम हो, टेक्नोक्रेट हो, और मीडिया में भी जो वर्कर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं ग्राउंड सतह पर, इन बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स को चलाने वाले, उनके मसाइल का ताल्लुक है। आज पूरे हिंदुस्तान में एक चार्टर बना है और मुश्तरका तौर पर जो ट्रेड यूनियंस का एक प्लेटफार्म है, कई ट्रेड यूनियंस का, उन्होंने आज यही ऐलान किया है, यही मंशूर जारी किया है कि अपने मामलात को हल करने के लिए मोदी सरकार के आने के बाद और ज्यादा जरूरी बन गया है कि अपने सफों में एकता पैदा हो। और जहां तक मोदी सरकार की नीतियों का ताल्लुक है, जो हासिल हुआ था आज तक, हमारे मजदूरों ने पूरे मुल्क में, ट्रेड यूनियंस ने जो लाज बने थे उनको कोड्स में तब्दील करके आज आंच आई है इस सवाल पर। जो मुकर्ररा टाइम है 8 घंटे का, यूनियन बनाने का हक और बारगेनिंग का, मालिक और वर्कर के दरमियान अपने मामला को सुलझाने का जो ढंग बना है, उनको भी, उन कवानीन को हटा दिया गया। शब खून मारा है मोदी सरकार ने, मजदूर ने जो हासिल किया था पूरे मुल्क में, अपनी तंजीम बनाने का हक, यूनियन बनाने का हक, अपने आसाइश आराम के लिए जो भी सहूलियात मैसर हुई थी, इस सरकार ने उनको बैक जंबिश कलम खत्म कर दिया। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये काला दौर है, दिस इज ब्लैक एरा, ब्लैक दौर है ये मजदूर के लिए, चाहे वो दिल्ली का मजदूर हो, चाहे वो किसी भी जगह, साउथ का, नॉर्थ का, ईस्ट का, वेस्ट का हो, सबके लिए ये एक एरा है जिसमें जो भी हासिल किया था हमने लड़कर, उसको वापस लिया गया। सिक्किमों में काम करने वाले हमारे बच्चियां हैं, लेकिन आज तक ये बार ये जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस ने कहा इनको वर्कर का दर्जा दिया जाए, वर्कर का दर्जा दूर, उन्हें अब वो जो मुकर्रर है वो भी वक्त पर नहीं मिलता है। और काम वो नहीं जो उनका मनसब रहा है, काम जो भी, जहाँ भी बड़े लोग आए वहाँ उनके जलसों में जाना, वहाँ उनकी मीटिंगों में जाना, वहाँ उनकी तहजीब में खड़ा होना, ये एक जिम्मेदारी दी गई है उनको। इस पर उनको कोई झिझक नहीं, कोई रुकावट नहीं। लेकिन जब हम वेजेस की बात करते हैं इन बहनों के लिए, वो मिलती नहीं। डेली वेज और कैजुअल लेबर, कोई भी आप महकमा देख लीजिए हमारी सरकार में काम करने वाले, ये हिस्सा 20-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक जमानत नहीं है इनको पेंशन की, जमानत नहीं है उनको जो बाकी इंसेंटिव्स है आम मुलाजिम को, वो इस मजदूर को जो रात दिन तैयार रहता है कोई भी फर्ज निभाने के लिए। और इसी तरीके से आज जो हमारे पास हैंडीकैप्ड है, यार सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है हमारे जिंदगी में, हमारे समाज में, उनके मसाइल है, लेकिन उनको हल करने की तरफ तवज्जो नहीं। और अभी जहाँ तक हमारे पास कारखाने बड़े नहीं हैं, एक कारखाना है हमारा, वो कारखाना है खेती। और अभी आप देख लीजिए बहुत कुछ बड़े बड़े रईसों के कर्जों को माफ किया जाता है, लाखों करोड़ माफ किए गए, अंबानी है, अडानी है और लोग हैं। लेकिन जहाँ तक हिमाचल का ग्रोवर है या कश्मीर का ग्रोवर है, फ्रूट बनाने वाला, हम चाहते हैं केसी लोन माफ किया जाए, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। ये अफसोसनाक है। और इसी वजह से जहाँ तक हमारे ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं उनके मसाइल हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके मसाइल हैं, तो एक जथेबंदी है यहाँ हमारे कश्मीर में। और आज के मौके पर हम यही आवाज देंगे, अलग अलग रहकर हम कुछ हासिल करेंगे नहीं, एक साथ मिलकर आवाज उठाना, तब जाकर शायद सरकार को, इंतजामिया को अपने जायज मसाइल हल करने पर
मजबूर किया जा सकता है। वो मैं इसलिए कहता हूँ, सबसे पहले जहाँ तक आशा वर्कर या जो स्कीम्स हैं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। इसकी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है। अगर उन्होंने बाकी जगहों पर इंसेंटिव्स में बढ़ोतरी की है, और मैं ये चाहूंगा उमर साहब की सरकार को भी इस पर गौर करना चाहिए, कम से कम इनका ऑनरेरियम यहाँ के खजाने से उसमें इजाफा किया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है, तब जाकर इन्हें कुछ राहत मिल सकती है। 18% कल बढ़ाया गया किराया, इसके बाद क्या बनेगा? 18% आप किराए की बात करते हैं, मैंने अभी ईरान के बारे में बताया। अरे साहब, अगर ये जंग मजीद जारी रही, अगर अमेरिका का इसराइल का ये हमला ये जारी रही, और अगर ये पागलपन रुका नहीं, तो आप आने वाले वक्त में देख लीजिए अभी गैस की कीमतें कहाँ पहुंच गई, सरकारी गाड़ियां भी नहीं चल सकती हैं, चूल्हे भी नहीं जलेंगे, और इसी तरीके से मजदूर की, वर्कर की बात ही नहीं, हमारे पास उतना है ही नहीं कि हम बाजार तक जा सकें, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। हमें डर है कि अगर इस जंग को और ज्यादा तवालत मिली अमेरिका की तरफ से, अगर अवाम ने हरकत नहीं की इंटरनेशनल लेवल पर, इस फिरौन मिजाज सरकार को मजबूर नहीं किया, शायद तेल का क्राइसिस, गैस का क्राइसिस बहुत ज्यादा गहरा होगा पूरे माशरे पर। चाहे यही नहीं कश्मीर बल्कि पूरी जो दुनिया है मुतासिर रहेगी। इसलिए हमारा मुतालबा है, जंगबाजों को लगाम दो, ये हमारा नारा है, और दुनिया में अमन कायम हो, तब जाकर आम लोगों को राहत मिल सके।